Hello and welcome to NLCC classes. I, Advocate Mohammad Nasser Kazim, welcome you to your personal best free online coaching for Jamia and AMU entrances and also for regular classes of law. We here provide you education for BA, BLLB and various courses, similar courses, CLAT, CUET, UG. And one announcement before I start my today's topic, that we are going to start our batch of BA, LLB entrance for 1 year and 1 year that means के अभी से पूरे 1 साल वाला बैच, मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाते, और उसके बाद आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट BA बैच फॉर 1 year. So offer I will share in a different video, but right now I can only say that our price is 35,000 for offline classes. We will provide you the same batch for just 17,500 if you join offline before June, and we will also provide you online classes, the same classes in 15,000 rupees if you join in online mode. That is a 1 year course from June till exam. This offer valid till seats filled. Our total capacity in offline is 15 students and in online we only take 15 students. That is 15 plus 15 right now. In June batch, that is 30 strength is there. So admissions are going very fast. If you are interested, then call us on given number, that is 82183 42419 or 9412636251. If you are serious and want to prepare for serious entrance exam clearance, then you should try NLCC classes, which is situated in your city, Aligarh. Now, today I am going to discuss a topic that we are continuing from last 2 classes, that is contract. Contract, especially for Jamia entrance exam, which is going to be conducted soon in May. So there is one more update. Maybe this exam is going to shift on some other date. There is no official notification till now, but maybe we will whenever we get the update, we will share it with you. Now I would like to start my topic, that is contract, and want to tell you that one more thing before starting the topic. Those boys and girls who want to join the NLCC classes, for girls we have a facility of PG in our coaching itself for 4 beds are left, and for boys nearby we have a hostel facility for boys also, and our premises is close to AMU, so that you have access of a beautiful market and environment is for study here. Now we are going to start the class. Earlier we have discussed few important things like what is contract law, the essential elements of valid contract, types of contract. All these things we have discussed with example and sections. Now today we are going to discuss important sections and then explanation. That is section number 2. In my class I will discuss the topic in English as well as in Hindi. I will mix up the terms and things. Walaikum Assalam to Fazan. And those who are watching my class later on, it is a request to subscribe the channel and to share the video to your friends and tell about NLCC classes, law and humanities expert coaching in Aligarh itself. And also please like the video and subscribe our channel, because that is a way of showing your love to us. Now we are going to start our class, that is contract for Jamia. Important section and their explanation today we are going to discuss. Section number 2, first section, which contains many clauses like 2A, 2B, 2C, 2D, 2E and various clauses. Okay, but we are going to study a common one, that is definitions. All the definitions which have we discussed earlier, what is contract, what is agreement, we have discussed in previous class. You can watch our video. You can watch our video in the live section. The link will be there on our YouTube channel, or you can go to our video section. You can watch also there on YouTube NLCC classes. So previous 2 classes have been done. This is the 3rd class. Definition contains or defines key terms such as contract, agreement, promise, consideration, etc. All these terms which we have discussed earlier here, offer, acceptance, contract, purpose, everything which we have discussed are explained in section 2. One more announcement: if you want these notes, you can purchase a particular subject notes also at a very minimum price of just 100 rupees in offline, and online 50 rupees. Okay, now we are moving on to section number 2 contains the definition part of these इंपॉर्टेंट टर्म्स. यानी सेक्शन नंबर 2 में आपकी सारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की, उनके डेफिनेशन दी हुई है. एग्जाम में अगर आपके आता है
तो आपको सेक्शन 2 पूछता है कि डेफिनेशंस कहां दी हुई कॉन्ट्रैक्ट की, एग्रीमेंट की या किसी भी कंसिडरेशन प्रॉमिस की, तो आपको आंसर लगाना है सेक्शन नंबर 2. यू हैव टू आंसर section 2 as the answer of the above question which I mentioned. Now let me move on to section number 10. Section 10 talks about what agreements are contract. कौन से agreement contract होते हैं इसके बारे में बात करते हैं. An agreement is a contract if made by free consent of competent parties for lawful consideration and object and is not expressly declared void. So what is the question कि कौन से agreement contract होते हैं, सेक्शन 10 में बताया हुआ है. कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये सेक्शन 10 में. अगर एग्जाम में आपके पूछता है एमसीक्यू में कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो ये बात करता है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बारे में बताता है, तो आपका आंसर होगा सेक्शन 10. एन एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है इफ मेड बाय फ्री कंसेंट. अगर वो फ्री कंसेंट, फ्री बातचीत से बनाया गया हो, जो भी पार्टीज जिनके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो दोनों पार्टीज कंपिटेंट. तो कंपिटेंट मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, इट शुड बी 18 years. 18 years ऑफ एज इज कंपल्सरी एंड साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड. पर्सन दिमाग वाला होना चाहिए. पर्सन उस टाइम पे किसी बीमारी से या किसी दिमागी प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहा हो. ओके. फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, और इसके साथ कंसिडरेशन भी लॉफुल लॉ वाला होना चाहिए. एंड ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए. एंड इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, और ये साफ साफ उसमें बोला गया हो कि ये किसी भी हाल में वाइड नहीं होगा. दैट इज एन एग्रीमेंट becomes, that is when an agreement becomes a contract. If you like this, please like the video and subscribe our channel. Now example से समझते हैं. agreement to sell produce for fair price is a contract. एक एग्रीमेंट कि हम बेचेंगे कोई भी चीज को जो हमने बनाई है तो फेयर प्राइस पे मार्केट में, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है. और यही एक एग्रीमेंट हो गया जिसको हमने पहले एग्री हुए जिस चीज पे, और उसको फिर उसी चीज पे हमने करा भी, तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 11. व्हाट इज कंपिटेंट, who is competent to contract? कौन है competent contract करने के लिए? Every person competent is of sound mind, major 18% plus 18 plus and not disqualified below. So there are few only requirement to be a competent person in a contract. Contract करने के लिए आपको किसी से भी contract करना हो तो आपको कुछ 2-3 conditions मेनली वो फॉलो करनी होती हैं ताकि आप किसी से भी contract कर सकें. तो पहली कंडीशन क्या है, हर एक पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी उस टाइम पे उसकी दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए. 18 प्लस उसकी एज होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, और लॉ ने उसको किसी भी तरीके से डिबार्ड नहीं कर रखा हो कोई भी चीज करने से. अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर योर थॉट्स इन चैट. एंड इफ एनी डाउट इज देयर, please ask me right now, otherwise I will move on to next part. Should we move on to next part? Please comment. यहां तक समझ में आ गया आपको सभी बच्चों? And please remember, we are the only coaching which are providing you this Jamia legal reasoning and aptitude class free of cost in an online mode. Do share about us to your friends. At least this you can do for us. Now moving on to next section, that is section number 12. What is sound mind? Sound mind किसे कहते हैं, जो है हमने ऊपर पढ़ा. अच्छा, पहले हम जरा सा जो हम पढ़ रहे थे who is competent to contract, उसकी एग्जांपल देख लेते हैं. A minor cannot make contract. एक कोई माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. कोई माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि 18 प्लस इज अ कंडीशन, और 18 से नीचे वाले माइनर होते हैं, 18 के ऊपर वाले मेजर होते हैं एज पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है. इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, यानी कैंसिल कर दिया जाएगा. सेक्शन नंबर 12, व्हाट इज साउंड माइंड? साउंड माइंड कहां दिया हुआ बेटा? सेक्शन नंबर 12 में दिया हुआ है साउंड माइंड. अगर एग्जाम में आता है तो अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट इफ एबल टू अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. एक पर्सन को साउंड माइंड जब बोला जाता है जब वो उसको कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आ जाती है. यानी अगर मैं ही हूं, इनका कहने का मतलब ये कि अगर जैसे मैं ही हूं, मैं चीजें पढ़ा रहा हूं और मुझे सब चीजें पता है, पर जो वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किसी ने किया, अगर मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट ही समझ में नहीं आया और उस कॉन्ट्रैक्ट का मुझ पे असर क्या होगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उस टाइम पे आप एज पर लॉ ये बोल सकते हैं कि मैं कंपिटेंट नहीं हूं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी नहीं कोई दिमाग खराबी हो, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में आना चाहिए. तो साउंड माइंड इज कि आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में अगर आ रहा है, दैट इज अ साउंड माइंड. सेक्शन नंबर 13, कंसेंट. कंसेंट क्या होती है भाई? मेरी इजाजत. तो कंसेंट मींस एग्रीमेंट बाय फ्री विल, जो मैंने अपनी मर्जी से कुछ किया, दैट इज अ कंसेंट. ठीक है. सेक्शन 14, कोवर्जन. कोवर्जन मतलब होता है कंसेंट ऑब्टेन बाय थ्रेट. कंसेंट तो आपने मेरी ले ली, पर आपने मुझे डराया धमकाया, मेरे साथ वायलेंस की, और मेरी कंसेंट आपने ले ली जो कि मैं पहले आपको फ्री में सेक्शन 13 में दे सकता था, पर आपने सेक्शन 14 में मुझे थ्रेट करके वो चीज ली. तो सेक्शन 14 में मेरी कंसेंट फ्री नहीं हुई, दैट इज सेक्शन नंबर 14, दैट इज कोवर्जन. कंसेंट और कोवर्जन में डिफरेंस यही है, जहां फ्रीली हो जाए कोई चीज, जहां कोई चीज फ्रीली नहीं हो कंसेंट मेरी, वो क्या होगा? सेक्शन 13-14 में दिया हुआ है. एग्जाम में अगर आता है कोवर्जन इज द मोस्टली आस्क्ड सेक्शन इन एनी एग्जाम, नॉट ओनली इन जामिया, इन एनी लॉ एग्जाम कोवर्जन सेक्शन इज आस्क्ड नॉर्मली.
ओके, तो सेक्शन आपको ये आना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू एग्जांपल, फोर्स टू साइन कॉन्ट्रैक्ट अंडर थ्रेट। एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया धमकी के बाद या डर के मारे, तो उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल यानी उस टाइम तो मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इस सिचुएशन में अगर मुझे किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है तो क्या वो वाइड रहेगा या फिर वैलिड रहेगा? तो बेटा ना वो वाइड रहेगा ना वैलिड, वो वाइडेबल रहेगा। वाइडेबल इज अ फॉर्म, यानी कि वो चीज पहले तो आपने करा ली मुझसे, ठीक थी, लेकिन बाद में मैं उसे कैंसिल करवा सकता हूँ कोर्ट की मदद से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, ठीक है, दैट इज वाइडेबल, यानी आप बाद में उसे कैंसिल कर सकते हो। सेक्शन 15 अनड्यू इन्फ्लुएंस। Section 15 talks about undue influence. And before moving on to section 15, let me ask you a simple question. Whenever you watch this video, please answer this. Please answer this in my video. That if I have given some consent in article in section 13, if I am given some consent by my free will, then a contract after this consent will be option A valid, will be option B void, will be option C voidable, or none of the above. Okay, now moving on to section 15, undue influence. When one party dominates the will of another to obtain consent. तो एक पार्टी ने कंसेंट तो ली, आपकी मर्जी से ही ली, पर आपको ना उसने ऐसे घुमाया, ऐसे फिराया, ऐसे समझाया कि आपको उस टाइम पे वो चीज सही लगी। यानी आपके साथ थ्रेट तो नहीं हुआ, आपके साथ कोर्जन तो नहीं हुआ, लेकिन आपने उसकी बात मान ली, भले ही वो बात आपको बाद में समझ में आई हो कि वो बात ठीक नहीं थी या गड़बड़ थी, ठीक है। या एक आदमी ने, दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में, एक आदमी ने अपनी ज्यादा बात मनवा ली कॉन्ट्रैक्ट में और दूसरे आदमी ने उसकी ज्यादा बातें मान ली, तो बाद में आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं था, ठीक है। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, यानी एक ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया। सेक्शन नंबर 16 टॉक्स अबाउट फ्रॉड। सेक्शन नंबर 16 टॉक्स अबाउट फ्रॉड। डेलिब्रेट डिसेप्शन कॉजिंग अनदर पार्टी टू कंसेंट। फ्रॉड इज अ डेलिब्रेट डिसेप्शन कॉजिंग अनदर पार्टी टू कंसेंट। फ्रॉड मतलब आपने किसी के साथ धोखा किया, अब वो धोखा ऐसा था जिससे आपने धोखे से उससे उसकी कंसेंट, उसकी परमिशन ले ली, तो वो फ्रॉड है। तो बाद में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट विल बी वाइड और वाइडेबल। कमेंट, अगर आपने किसी से धोखे से उसकी कंसेंट ले ली है तो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे क्या होगा? वाइड होगा, उस टाइम पे तो वाइड होगा, और आप जब तक उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो तब तक वो वाइडेबल होगा, ठीक है। फ्रॉड सेक्शन 16 में दिया हुआ। नाउ मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल, सेलर लाइज अबाउट कंडीशन ऑफ द गुड्स। मैंने कोई सामान आपको बेचा, आपने मुझसे पूछा कि ये सामान कैसा है, और मैंने आपको उस सामान की गलत खासियतें बता दी जो उस सामान की थी नहीं, ठीक है। तो वो हम क्या बोलेंगे? आपने उस गलत बात को मान के वो गुड परचेज कर लिया, दैट इज अ फ्रॉड विद यू। सेक्शन 17 टॉक्स अबाउट मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन वो चीज होती है बेटा जहां पे आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, फॉल्स स्टेटमेंट मेड इनोसेंटली कॉजिंग कंसेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा। तो यहां पे भी वाइडेबल हुई चीज, यहां पे भी वाइडेबल हुई। फॉल्स स्टेटमेंट मेड इनोसेंटली, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो आपने इनोसेंटली कॉज किया, ठीक है, यानी जानबूझ के नहीं किया, लेकिन आपने, आपका स्टेटमेंट ही गलत था, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कंसेंट मिल गई, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी बाद में आप कैंसिल करा सकते हो, दैट विल बिकम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 17 टॉक्स अबाउट मिसरिप्रेजेंटेशन। यानी मैंने आपको बोला कि मैं इस कोचिंग का ओनर हूं और मैंने आपसे फीस ले ली, ठीक है, और बाद में आपको पता चला कि मैं इस कोचिंग का ओनर नहीं हूं, कोई और है, और वो फीस मांगता है आपकी क्लास करने की, तो मैं जो हुआ, मैंने आपको मिसरिप्रेजेंट किया। मिसरिप्रेजेंट मींस दैट, और मेरे साथ जो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में आए थे पढ़ाई करने के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो गया। आई हैव टू रिटर्न फीस व्हेन मैं पकड़ा जाऊंगा तब, ठीक है। सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट मिस्टेक, ईदर म्यूचुअल अफेक्टिंग बोथ पार्टीज और यूनिलैटरल। मिस्टेक मतलब कोई भी गलती, चाहे किसी एक कॉन्ट्रैक्ट वाले ने की हो, चाहे दूसरी पार्टी ने की हो, ठीक है, चाहे दोनों ने मिलकर कोई मिस्टेक की हो, या दोनों ने जानबूझ के कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट लिखा और वो गड़बड़ हो गया, उसमें अगर मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इससे दोनों पार्टी पे नुकसान भी हो सकता है या किसी एक पार्टी को भी नुकसान होता है, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी वाइडेबल हो जाएगा। दैट इज अ मिस्टेक फॉर यू। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 19, वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, contracts caused by certain system. तो section 19 talks about void contracts. Okay, let me give a dash here. Mistakenly I have continued in the same line. ठीक है, section 19 talks about void contract. Contract caused by certain systems of coercion. Coercion की कुछ वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमने कोर्जन में भी ये सेम चीज पढ़ी थी। कोर्जन इज अंडर सेक्शन नंबर 14, जहां पे हमने बोला था कि जो भी इस तरीके की कोई चीज होगी, थ्रेट या वायलेंस होगा जो कि नॉट फ्री होगा, दैट विल बिकम वाइड, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन नंबर 19। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 20, एग्रीमेंट विच आर वाइड इफ नॉट इन राइटिंग। तो सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट इस तरह के एग्रीमेंट जो कि वाइड हो
इफ नॉट इन राइटिंग, मतलब उनके लिए आपको लिखना जरूरी था कॉन्ट्रैक्ट को, पर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा ही नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अगर आप बाद में चाहो तो उसे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अबव ₹100, एक आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप सेल करेंगे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू है ₹100 से ऊपर, तो इस तरह का एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, वाइड, अगर ये चीज राइटिंग में नहीं है तो, यानी बाद में वो बंदा जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो बोल सकता है आपने मुझे राइटिंग में ये चीज तो दी नहीं थी, तो ये चीज क्या होगी बेटा, वाइड होगी। ओके, नाउ सेक्शन 23 टॉक्स अबाउट लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉरबिडन बाय लॉ इज वाइड। तो ये क्या होता है बेटा, ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के हिसाब से नहीं है ना, जो भी लॉ के हिसाब से नहीं है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। That is section 23 for you, lawful consideration and object. You have to memorize sections. There is no shortcut to deal with it. You have to memorize on a daily basis so that you can know what section, if section asks in the exam, what section contains these type of topics. Okay, section 25 talks about agreement without consideration is void. So section 25 talks about agreement without consideration is void. कोई भी एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं हो वो भी void हो जाएगा। तो यानी you have to remember कि article 20 section 23, ठीक है, section 20 all are talking about void things. Okay, that you can remember in exam. This is a trick. Okay, all are talking about void things. 20, 23 and 25. You have to remember above portion, that is agreement, lawful consideration or agreement which are void. You have to remember this, or otherwise they are all void type of terms. There must be consideration for contract validity unless it is greatest or under some exception. ठीक है, या पर उसमें कुछ कंडीशंस लगी हो या उसमें कुछ एक्सेप्शन लगा हो, ठीक है, तब वो चीज क्या होगी, वैलिडिटी उसकी चेक की जाएगी। क्या कह रहा है, देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, आपके पास कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, उसकी वैलिडिटी को लेकर के, अनलेस, ठीक है, कहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, जहां पे कुछ कंडीशन लगी हो या कुछ एक्सेप्शन लगे हो। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, जहां पे कंसिडरेशन ही नहीं होगा, जहां पे कंसिडरेशन ही नहीं होगा वो चीज वाइड हो जाएगी। लेकिन वो वाइड कब नहीं होगी, जब पहले से कुछ एक्सेप्शन लगा हुआ होगा। यहाँ ये कह रहा है, ये चीज वाइड कब नहीं होगी, जब पहले से कुछ कंडीशन या एक्सेप्शन लगे हुए होंगे। नाउ और कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन बीच में नहीं दिखा मुझे, मैं सीधे सेक्शन 37 पे गया हूं। सेक्शन 37 टॉक्स अबाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म प्रॉमिस। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म प्रॉमिस, यानी आप बाउंड हैं, आपको आपने किसी से प्रॉमिस किया है, आपको प्रॉमिस पूरा करना ही करना है। प्रॉमिस क्या चीज होती है बेटा, प्रॉमिस ये चीज होती है कि तुम यार ये कर दो, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, इन एक्सचेंज ऑफ मनी, इन एक्सचेंज ऑफ फ्रेंडशिप और एनीथिंग। ओके, नाउ सेक्शन 37 ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म प्रॉमिस, ठीक है, परफॉर्म प्रॉमिस। एवरी valid contract is a law for the parties. Every valid contract is a law for the parties. Performance required. हर valid contract law, उस पर लॉ लगेगा पार्टीज के ऊपर, ठीक है, और उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो भी प्रॉमिस किया गया उसे पूरा करना पड़ेगा, पर परफॉर्मेंस चाहिए होगी, यानी प्रॉमिस चाहिए होगा, ठीक है, ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। सेक्शन 39 इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, अगर आपने किसी चीज, किसी का प्रपोजल या कुछ आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया तब क्या होगा, ठीक है। तो व्हेन एक्सेप्टेंस इज मेड, अगर कोई एक्सेप्टेंस दी जाती है, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट। अगर आपने किसी चीज, आपको कोई ऑफर हुआ या आपको कोई प्रपोजल हुआ एंड आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या माना जाएगा, एग्रीमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा कि वो कंप्लीट हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, यानी चीज जो है वो कंप्लीट हो गई। वही कह रहा है कि व्हेन एक्सेप्टेंस इज मेड द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा एक्सेप्टेंस अगर मान ली जाती है तो। सेक्शन 40 टॉक्स अबाउट रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफर। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करता है सेक्शन 40। ऑफर में भी रिवोक बिफोर एक्सेप्टेंस। देखो, एक्सेप्ट होने से पहली जो स्टेज होती है ना, वहां पे आपने कोई अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर दिया तो आप उसे रिवोक कर सकते हो, वापस ले सकते हो। वही बात कह रहा है कि ऑफर में भी रिवोक बिफोर, लेकिन एक बार एक्सेप्ट हो गया ना, फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते, ऐसा माना जाएगा कि वो कंप्लीट हो गया। ना मूविंग ऑन टू सेक्शन 40 था ये, ना मूविंग ऑन टू सेक्शन 56। ओके, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। अगर कोई चीज ऐसी है जो कि इम्पॉसिबल है और आप उसको करने का एग्रीमेंट कर लेते हो तो वो वैसे ही वॉइड मानी जाएगी। यानी आपसे बोला जाए कि आप जाइए और किसी का मर्डर करके आइए, दैट इज एन एग्रीमेंट, और आपने उसके लिए एग्री कर लिया, तो वो तो लॉ के हिसाब से ही नहीं ना, चीज गलत है ना, तो इस तरह की चीज क्या होगी, वो वैसे ही वॉइड मानी जाएगी। जैसे इस पे एक डॉक्ट्रिन भी लगती है विच इज मेनली आस्क्ड इन योर एग्जाम ऑफ जामिया आल्सो, ठीक है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। Doctrine of frustration, that is the same as agreement to do impossible act is void. Section 50 is very important for your exam. Okay, क्या है एग्जाम्पल, इफ आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल, किसी परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। अगर कोई जलजला है, उसकी वजह से कोई, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, पर वो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज थी वो डिजास्टर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 73 कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज। अब आगे बात पैसे की, जो हमने इससे पहले वाले टॉपिक पढ़े थे, याद होगा आपको, पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था,
पिछला जो सब्जेक्ट पढ़ा था हमने टॉर्ट पढ़ा था, वहां पे बेसिकली कंपनसेशन और इस तरह की चीजें आती हैं। यहाँ पे सेक्शन 73 में कंपनसेशन की बात करता है कि आपका जो भी नुकसान हुआ है, आपका जो भी डैमेज हुआ है, डैमेज क्या होता है बेटा कमेंट में बताइएगा, मैंने टॉर्ट में पढ़ा है, जो बच्चे मुझसे पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है वो बता सकते हैं। टॉर्ट में डैमेज डिफाइन किया हुआ है ना, तो बताइएगा। तो क्या है, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो किसी के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से जो उस पर नुकसान या उसका जो भी भरपाई आपको करनी है वो आपको करनी होगी, 73 ये कहता है, यानी आपको कंपनसेट करना होगा। और आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी का वॉइड कर दिया तो, या वॉइडेबल हो गया तो। एग्जांपल क्या है, सेलर फेल्स टू डिलीवर गुड्स। एक सेलर है वो डिलीवर गुड्स करने में फेल हो जाता है टाइम पे, ठीक है, यानी गुड्स तो डिलीवर किया उसने पर टाइम के बाद भी डिलीवर किया। अगर गुड्स डिलीवर हो गए तो ये नहीं बोल सकता कि मैंने गुड्स डिलीवर तो कर दिए, पर जब हमको जरूरत थी जिस चीज की, यानी शादी आज है, खाना आज बनना है और हम खाना आके कल बना रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ठीक है। खाना तो आज खाना था ना, मेहमान तो आज आए थे ना। बायर इंटाइटल्ड टू द डैमेज, जिसने भी वो खरीदा था वो इंटाइटल है, वो डैमेज सेलर से क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो दो बंदे होते हैं हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में, सेलर और बायर, ठीक है। सेक्शन 74 पे आइए, पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर ब्रीच। इसमें बात की जाती है पेनल्टी, सजा की बात की जाती है 74 में, 73 में कंपनसेशन की बात की जाती है। वेरी इजी, अ पेनल्टी क्लॉज इनफोर्सेबल बट कंपनसेशन शुड बी रीजनेबल। तो पेनल्टी होगी पर कंपनसेशन आप कुछ भी अंधाधुंध नहीं मांग सकते, कंपनसेशन आप मांगेंगे एक लिमिट में होना चाहिए, ठीक है, रीजनेबल होना चाहिए। 74 पेनल्टी की बात करते हैं। सेक्शन 75 से 76 दोनों बात करते हैं, पार्टी कमिटिंग ब्रीच कैन बी स्यूड फॉर डैमेजेस। जो पार्टी ब्रीच कर रही हैं उनको आप डैमेजेस के लिए उन पे केस, ठीक है, केस सूड केस कर सकते हैं। 75 76 टॉक्स अबाउट केस करो जाकर के अगर आपके साथ ब्रीच हुआ तो। नाउ 2G इज इंपॉर्टेंट, मुझे 2 सेक्शन में G वाला इंपॉर्टेंट लगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। सेल मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर प्राइस। सेल क्या होता है, ट्रांसफर होना आपकी ओनरशिप का, ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी चीज यानी अपनी ओनरशिप को एक प्राइस पे किसी और को बेच दिया, ठीक है, दैट इज सेक्शन 2G कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नाउ आज हम लोग यहां पे अपना ये टॉपिक खत्म करते हैं। अब कल हम लोग पढ़ेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को, थोड़ा डिटेल में समझाएंगे आपको कुछ बड़ी एग्जांपल के साथ। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, काउंटर ऑफर, रिजेक्ट ओरिजिनल ऑफर, ये कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, लेट मी रिड्यूस दिस फॉर यू। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटी विद एग्जांपल्स, फ्री कंसेंट को एक्सप्लेन करेंगे, परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज को पढ़ेंगे, ब्रीच एंड रेमेडीज को पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लीगल केसेस कल और मतलब मंडे में, एंड ट्यूसडे में हम पढ़ेंगे इसके एमसीक्यूज, ठीक है। ट्यूसडे में हम इसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे और एमसीक्यूज से पहले हम केसेस भी देखेंगे। तो 2 क्लास और उसमें आपके ये क्लास खत्म हो जाएगी मंडे एंड ट्यूसडे में। 4 से 4:15 के बीच में हमारी क्लास होती है, आप लोग जुड़िएगा जरूर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।